Class 10th. Yesterday we have left here in this table. Some of you have sent the response, some may not be. So we have seen the how many workers are engaging in the different sector. What are the green picture is there is only 1% or one labor or workforce working in the primary sector. Other most are in the unorganized sector. So yesterday through this discussions we come to know the workforce those are engaged in the unorganized sector are most insecure. They are working in the small units. They have largely out of the government control. There is no rule and regulations followed. They have the very low wages and there is no job security, and therefore we found and one of the important thing yesterday we talked about that 95% of the workforce is working in the unorganized sector. So one hand you have the majority of the people working in the unorganized sector and they are the most insecure. They do not have any kind of the security, and therefore the another concept came here, and that is how to protect worker in the unorganized sector. जब हमें पता है कि अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित क्षेत्र के मजदूर असुरक्षित हैं, वो संख्या में ज़्यादा होने के बाद भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, देन द कॉन्सेप्ट इज कम हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. Look, the first thing one has to be understand, there are very few jobs in the organized sector. And why there are very few jobs? The first thing is that there's a lot of reasons. The first thing is that the entire structure of the Indian economy is like that. Our social structure is that, and we have very little organized job. One thing has been written there, and the employment opportunity in the formal sector has been expanding very slowly in the organized sector, and also we have little job as well as the opportunity to expanding in the job opportunities for the job is very reducing day by day. Look, this is the one news headlines I would like to share with you, and this is that COVID-19 pandemic. HRD minister appeal companies to not withdraw job offer made in the campus placement, and that is the companies the Nishank Pokhriyal has urged the companies, those companies has placements from the IITs and IIM engineering and the business colleges. So they people supposed to be work in the organized sector, but what happened due to the COVID-19, so these people has a chance not to get their job. So everywhere that kind of the situation is already emerging. Okay, forget about that. So there are the two important things why there is a lesser job in the organized sector. The first, economical slowdown and the lockdown is the recent phenomena that has reduced the possibility of any job expansions in the organized sector. जो economical slowdown जो पहले से चल रहा था, and now the lockdown. So two things has to be understand. First, since the 1991, in the 1991 one thing happened there. There is a economical reform. What is the economical reform? We talk about that, but there is a liberalization, privatization, globalization, whom we call the LPG. Through these policies, what the government has done, they introduce a new concept that called the labor reform. Labor reform is nothing but some sort of ease given to the companies. ये कुछ नहीं था लेबर रिफॉर्म, बल्कि कंपनियों को छूट देनी थी जिससे दे कैन स्टैंड इन द ग्लोबल कंपटीशन, जिससे कि ये दुनिया के कंपटीशन में वो खड़ा हो सकें, हेल्पिंग इंडियन बिजनेस टू द मोर कम्पीटिंग इन द ग्लोबल कंपटीशंस, क्योंकि आपने बाजार खोल दिया था. सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डू, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हैज़ बीन डाइल्यूटेड. लाइक अब जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या और भी जॉब्स हैं उनमें कोई पेंशन नहीं दी जाती, अगर आपको याद होगा. ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी बहुत ही डाइल्यूट हुआ है, उनमें पेंशन नहीं दी जाती है. 2002 के बाद से लगभग जो भी लोग जॉब में आ रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती है. पेंशन का मतलब होता है आफ्टर रिटायरमेंट ए सोशल सिक्योरिटी मेजर हैज़ गिवन यू बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग इन एंटायर योर लाइफ, यू हैव devoted to a particular job, so the job or employees has a responsibility to give you to take care of yours. तो उसके लिए certain amount of the money दी जाती है, उसको हम पेंशन कहते हैं. इसमें क्या होता है, आप यूनियन नहीं बना सकते लेबर रिफॉर्म्स में. आप क्या नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब आप मोर और लेस अनऑर्गेनाइज की तरह काम करते हैं. तो ये तो आपकी पूरी पूरी इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर है. एंड जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं बढ़ रहे हैं, इसका एक और कारण हम देख सकते हैं. जो अलग अलग डेटाज है, मैंने आपको सोर्स नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है क्लास में भी हमने डिस्कस किया है. अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रीच ए 45 ईयर्स हाई इन 2018. पिछले 45 सालों में बेरोजगारी भारत में सबसे टॉप पे है. ये है रिसेंट इम्पैक्ट है, एंड दैट इज़ द कंडीशंस बिफोर द लॉकडाउन.
So since the 1990s, what happened? The large number of the worker are losing their job in the organized sector. Those who are working in the job in the organized sector, they lose their job, and what happened? They are forced to work in the organized sector. ठीक है, पहले ही आपके यहाँ बहुत कम लोग जॉब करते थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी जॉब खोने लगे. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं? When you have the large number of the people in the unorganized sector, they are losing the job here, and most of the people is there, 95% people in the working in unorganized sector. So ऐसे में हमें लगता है therefore it is need to give work, इनको काम देने की भी जरूरत है, बिकॉज पीपल आर डूइंग वर्क व्हाट लेसर देन देयर पोटेंशियल्स और इन द लेस वेजेस. वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, हर दिन काम नहीं मिलता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और उनको वेजेस, उनको सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती है. तो हमें क्या करने की जरूरत है? एक तो उनको काम मिले, दूसरा है किसी भी इकोनॉमी में उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए. यही तो था हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएँ, उनको रेगुलर वर्क मिले, उन्हें प्रोटेक्ट करें. तो प्रोटेक्ट करने से पहले समझे तो सही क्या है, किस तरह की वनरेबिलिटी है, कौन है ये वनरेबल लोग, क्या प्रोटेक्ट और क्यों उनको जरूरत है प्रोटेक्ट करने की. हम जरा प्रोफाइलिंग को अब जरा क्लासिफाई करते हैं. अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स कौन है? दो तरह के हैं, गांव में और शहरों में. देखो गांव में कौन है? लैंडलेस एग्रीकल्चर, जिनके पास खेत नहीं है, दूसरे के खेतों में काम करते हैं. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. आपको याद है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसी चैप्टर में कि 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड फार्मर आर स्टैंड इन दिस कैटेगरी. तो आपके 80% भारत के फार्मर स्मॉल फार्मर हैं. ये हमने पालमपुर वाली स्टोरी क्लास 9th में भी पढ़ा था. आर्टिसियंस हैं, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, और भी अदर मिस्त्री जो भी होते हैं. एंड शेयर क्रॉपर है, जो लोग आपकी फसल उगाते हैं, बदले में उनको कुछ फसल मिलती है. ये सारे के सारे लोग इनसिक्योर हैं. ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. रूल रेगुलेशंस कुछ नहीं होता, बहुत लो वेजेस पे इनको काम करना पड़ता है. शहर में कौन है? ये तो है गाँव में. हम बात कर रहे हैं वनरेबल कौन है, प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्शन की जरूरत है? अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स में. शहर में जो वर्कर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, जो आपने देखा होगा लेबर के रूप में, पेंटर के रूप में, अपने सिर में सामान ढोने वाले. कैजुअल इन ट्रांसपोर्टेशन में जो कैजुअल काम करते हैं, स्ट्रीट में वेंडर लगाने वाले, सब्जी लगाने वाले. और आजकल आपने देखा होगा एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स आई है, जो वेंडर है उनको टारगेट किया जा रहा है. वो किस कम्युनिटी के? वो पहले ही इनसिक्योर हैं. हाथ से काम करने वाले, सिर में सामान ले जाने वाले. गारमेंट में, गारमेंट इंडस्ट्री में जो कपड़े बनते हैं उसमें बहुत बड़े वर्कफोर्स की आपको ज़रूरत होती है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काम करते हैं. छोटे छोटे बटन बनाने वाले, इस तरह के काम करने वाले, बहुत कम इनको सैलरी मिलती है. और ये पिग रैकर्स जो होते हैं बेचारे, पिग पैकर्स, जो जंग डीलर्स या कबाड़ उठाते हैं, आपने देखा होगा, ये सारे के सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. ये तो देखा हमने इनकी प्रोफाइलिंग है ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन और रूरल. अब हम देखते हैं एक और प्रोफाइलिंग है, इनकी सोशल प्रोफाइलिंग. अगर देखें तो ये लोग कौन है? अगर सोसाइटी के हिसाब से देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, ये आपके कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द बैकवर्ड कम्युनिटी. ओके, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.